रोटी भी बना ले। पूरी मिट्टी आटा बच, कंकर चावल बच। मेरी बच्ची, मिट्टी से रोटी, और ये रोटी कौन खाएगा? विश्वास रख माई, मिट्टी से बनी रोटियां सारा जग खाएगा। राजा सुखदेव, हाय शक्तिदेव। देव मानव कन्या मावली धरती पर चमत्कार कर रही है। उसके छूने से मिट्टी का आटा और कंकर के चावल हो जाते हैं। हाँ राजा शक्तिदेव, मावली का स्थान तो दारुका में होना चाहिए। तो देख इस बात की मावली का अपहरण करो। समय बीतता गया और मावली किशोरावस्था में आई। मावली को भगवान के घर के दान फूल आए। मावली को महामारी शुरू हुई। औरत की की सजा मिल रही है इस बात की कि मैंने देवता और राजा को ठुकराकर एक ग्वाले को पति माना। हाँ, सुनो, 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 सुनो। आवाज कुलाचा! मैं प्रकृति की मातृशक्ति का प्रतीक हूँ। इस हक से हे प्रकृति की देवियों, हे पवन देवी, आप तेज हवा बहाए। हे जल देवी माँ, धरती पर से जल अदृश्य कर दो। हे माता अन्नपूर्णा, अनाज के भंडार अदृश्य कर दो। हर कोई अनाज के लिए तड़पे पर मरे नहीं, ऐसा करो। आपली संस्कृती आमचा अभिमान हे मावली माई, हम राजा सत्ता के मत में मर्यादा भूल गए और ग्वाले पर हमला किया। हे मावली भाई, हम सभी आदिवासियों का वन संपदा पर अधिकार स्वीकार कर। खुश रानी। खुशो, खुशो, दूध पगली रूठती है, रूठती क्यों है? खुशो, ओ खुशिया, मैं मनोहर, मुझे मारती नहीं। तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। लो खुशो, मैं चुप रहता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। तुम जब तक कहोगी, ना ही उठूंगा, ना ही बोलूंगा। हमारा भाट क्यों तोड़ा? तोड़ा है तो बना के दो। अरे इतनी सी बात, लो अभी लो। हमें वैसा भाट चाहिए जैसे हमने बनाया था। वैसा ही लो, तुम तो उससे भी अच्छा लो। तुम्हें पता है, उसने हमारी कुट्टी थी, दूरी की घास की जगह भी थी। तुम सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम क्यों बताएं? तुमने तोड़ा था ना, तो तुम ही बनाओगे। अब इधर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। पहले बनाओ, फिर देखेंगे। दूरी की घास की जगह बनाई। सो कैसे बना, तुम बताओ तो। नहीं, हम नहीं बताएंगे। पहले बनाओ, फिर बताएंगे। लो बन गया। बन गया? हाँ। अच्छा दिखाओ। ये सीख किसी यहाँ लगेगी? तुम लड़कों से कुछ नहीं होता।
Answer. Of what the fuck is happening all around the world? What the happening all around the world? I think I'll go mad. I'll go mad. You. Explosion. Nothing. Nothing. Do you want to hear a lullaby? Every lullaby is a hate speech. Pessimist. How many now? I cannot. What? He can't fucking count it. I told you I'm genderless. And that's countless. Sometimes I can't find an answer to anything. I find them everywhere. Chanting. I want them to stop. Stop for being so childish, angry, Hateful. happy. Hater. Why are we here? To find a solution. But we just wanted to lie down and fucking sleep. ഞാൻ മൊത്തം ചതഞ്ഞായി നിനക്ക് വിറകിൽ നിന്റെ ശരീരം എളുപ്പത്തിൽ ഊരാൻ പറ്റും എന്റെ മരണം നിനക്കൊരു ഭാരമേ ആവില്ല എനിക്ക് സമാധാനം വേണം എനിക്ക് മരിക്കണം എന്തിനാ സാറേ സാറേ ഞാനൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം അപ്പോഴാ സാറിന് സമാധാനം തേടിയുള്ള മരണം എടോ വെളിച്ചത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാറേ ഇവിടെ സാറേ സാറേ ഞാൻ പറയുന്ന സമാധാനം കേൾക്കണം സാറേ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ വലിയ മോഷണമൊക്കെ നടത്തിയ അവരെന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നൊക്കെ സാറേ ഞാനൊരാളെ കൊന്ന എനിക്ക് ജീവപര്യന്തം കിട്ടില്ലേ സാറേ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എനിക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ലേ സാറേ അപ്പൊ അവര് തന്നെ സാറേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം സാർ ഏതായാലും മരിക്കാൻ പോവല്ലേ വേണ്ട സാറിനെ ഞാനിൽ കൊന്നാലോ സാറേ വേണ്ട വേണ്ട വീട് വേണ്ട വേണ്ട സാറേ വേണ്ട സാറ് ചാവാൻ പോവല്ലേ കൊല്ലുന്ന ഞാനായാലെന്താ ട്രെയിനായാലെന്താ സാറേ വേണ്ട വീട് വേണ്ട വേണ്ട വീട് 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 വീട്
സാറേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു என்ன சொல்லுவேன்? நான் பெத்தது பொட்ட புள்ள இல்ல, பையனா? ஐயோ, எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்களே. ஏய், உஸ்ஸ பெத்திருக்கிறா. ஏய், அலிய பெத்திருக்கிறா. 9 பெத்திருக்கான்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்களே. நான் என்னங்க பண்ணேன்? ஐயோ, நான் தவமிருந்து பெத்த புள்ளையாச்சே அது. ஏன் புள்ளையாச்சே அது? அவளுக்குன்னு நிறைய கனவு இருக்குங்க. ஸ்கூலு, காலேஜ், விளையாட்டு, வேலை. எப்படி போவா? இந்த ஊரு ஜனம் அவளை கேலி பேசுமே. உசு போது பாரு, 9 போது பாரு. ஒரு மூத்திரம் போறதுக்கு கூட பொம்பளைங்கிறதா ஆம்பளைங்கிறதா என் புள்ள படாத போடுமே சார். நான் என்ன சார் பண்ணுவேன்? 5 வயசுல இருந்து 12 வயசு வரைக்கும் என் புள்ள என்னெல்லாம் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கோங்க. நான் யாரு? ஏன் எனக்கு மட்டும் அப்படி தோணுது? சொல்லு, எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி தோணுது? நான் சொல்லலாமா? சொன்னா பிள்ளைங்க யாராவது என்னை கேள்விப்பட்டாங்களா? எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லாமா? ஐயோ, பயந்துருவாங்கன்னு இந்த புள்ள நித்தும் யோசிச்சு செத்துன்னு சார் வளர்ந்துருக்கோம். அவ சந்தோஷமா இருக்கா. இந்த வீட்லயே அவ வச்சதான் சார் சட்டம் அப்படின்னு சந்தோஷமா இருக்கான்னு பைத்தியக்காரி மாதிரி நான் யோசிச்சிருக்கேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆமா சார், நான் தவமிருந்து பெத்த புள்ள சார். அது நம்ம தானே சொல்றோம். பொண்ணா பிறந்தா பையன் மாதிரி சும்மா நெஞ்ச நிமித்தி தைரியமா வளர்க்கணும்னு. நான் பெத்தது பொண்ணு 9 தாங்க. பொண்ணும் இல்ல பையனும் இல்ல, அர்த்தநாரிய பெத்திருக்கங்க. அவ வசந்தி இல்ல. டேய் வசந்த், உன் கூட அம்மா இருக்கண்டா. உன் உணர்வுக்கு முன்னாடி மத்த எல்லாம் எனக்கு மயிருக்கு சமானம். வசந்தே, வசந்த் எங்க இருக்க? வசந்த், ஐயோ வசந்த். आज हम आए थे पीजी ऑडिटोरियम क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लेज होने वाले थे, तो उसी को देखने आज बैक टू बैक। एक्चुअली यहाँ पर ना माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल चल रहा है, नेशनल माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल, तो हम वही देखने आए थे जिसमें हमने 5-6 प्लेज देखे। फिर हम यहाँ से तो निकल रहे हैं। बैक टू बैक बहुत सारे प्लेज हैं यहाँ पर, काफ़ी लंबा टाइम, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बट और ये देखो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ऑसम एक्चुअली ऑसम। These are the plays that is going to be played here in the auditorium, and this is the sequence in which this play is going to be played. कैसा लगा अविनाश भाई? Did you liked जितना हमने देखा? हमने अब तक 4 प्ले देखे, एक हिंदी में देखा, एक इंग्लिश में देखा। इनॉग्रल मत भूलना। राइट, इनॉग्रल भी देखा। There are 5 plays। राइट, 5 प्लेज। एंड एक खास बात लगी कि ना काफ़ी रीजनल प्लेज आ रहे हैं, जो लैंग्वेजेस इस जहन को समझ नहीं आती, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मराठी से ताल्लुक़ है। जैसे मलयालम एंड तमिल प्ले देखा, भाषा समझ नहीं आई, लेकिन बट एक्टिंग वाज सुपर, मतलब अब ऑसम था एक्टिंग, और वो एक्टिंग कनेक्ट कर रहा था, भले लैंग्वेज हमें समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी। दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो भाई अपने सारे दोस्त भी अभी आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ ब्रंच करने की मूड में, तो सारे हम अभी मिलेंगे, यहाँ ब्रंच वंच करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को घर वापस निकलना है, कुछ लोगों को NSD जाना है। मैं, मेरी पेशेंट की अपॉइंटमेंट है तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा खाएंगे वाएंगे। ये जो जगह है दैट इज़ श्री राम सेंटर, तो यहाँ पर कुछ खाना वाना करके फिर सारे अपने अपने जगह पे निकल जाएंगे। ऐसे अगर आज हमारी पेशेंट की विज़िट नहीं होती तो मैं अभी NSD जाता, ठीक है, कोई नहीं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो भाई आज दिन भर के सिनेरियोज़ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई। सबसे पहले तो सुबह मैं गया थिएटर, वहाँ पर कुछ प्लेस थे, बहुत सारे प्लेस थे, जिसमें से कुछ प्लेस हमने देखे,
कुछ एनालिसिस की। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले अपने दोस्तों से मिल कर, फिर घर आ गए। देन फिर पेशेंट के पास गए। आफ्टर दैट वहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद आज एक पेशेंट ने और मुझे कॉल किया था। वो एक्चुअली पिछले होल मंथ अवेलेबल नहीं थी ड्यू टू कोल्ड और समथिंग। आज फिर वहाँ भी गया। वहाँ के बाद फिर मैं जिम आया। जिम आने के बाद अभी बस घर की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर रास्ते में कुछ सब्जी वगैरह या फिर फल वगैरह कुछ मिलता है तो मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि समटाइम्स ये चीज़ें होनी चाहिए यार घर पे। लाइक जब खाना बनाने बैठो तब क्या सब्जी है क्या नहीं, ये उस समय थोड़ी डिसाइड करना होता है। ये तो पहले से जो अवेलेबल होता है हम उसी पे काम करते हैं। बाकी अभी फल वल भी लेकर जाएंगे। एंड देन इस वीडियो को, आज की वीडियो को एडिट करके, एक्चुअली मैं ना इस वीडियो में वो प्लेस भी ऐड करूँगा। मतलब पूरे तो नहीं कर सकता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं हर प्ले के छोटे छोटे कुछ पार्ट्स को इसमें ऐड अप कर दूँगा ताकि ये कुछ नया दिखे आपको। तो ऑल दिस हैपेंड विथ मी टुडे। और अभी मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, तो मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ।